Hello friends, welcome to all of you in this class. So today we are going to discuss continuous charge distribution and the forces exerted by continuous charge distribution. So let us start. So charge distribution. When charge is distributed somewhere, we call it charge distribution. Now there may be two types of distributions. One is discontinuous charge distribution and another one is continuous charge distribution. So firstly, discontinuous charge distribution. When charge is distributed not uniformly. At some places there may be large amount of charge. At some other places there may be less amount of charge. So that means it is not distributed uniformly. Then it is called discontinuous charge distribution. Let us see. This we have an object, and in this object you can see the charge distribution. Now at this place the amount of charge is more, or you can say charge density is high. Okay, and so check some other place. Here the amount of charge is very small, the charge density is low. So this type of distribution is discontinuous charge distribution. Clear? And another हमारे पास है continuous charge distribution. When charge is distributed over an object in a uniform method, uniformly, the charge density is same everywhere, the charge density is same at every place, then we call it continuous charge distribution. It further has three types. One is linear charge distribution, second is surface charge distribution, third is volume charge distribution. So we will discuss it one by one. तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की. When some charge is distributed continuously along the length of an object, length के along charge continuously distribute हो, uniformly distribute हो, उसको हम क्या कहेंगे? linear charge distribution. अब सपोज करिए हमारे पास कोई वायर है, इस वायर के along some positive charge is distributed uniformly. So this is the linear charge distribution. और एक एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज हमारे पास कोई मेटल की रिंग है, कोई मेटल की सर्कुलर वायर है, उस पे जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. दिस इज आल्सो लिनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. क्लियर? अब इसको डिफाइन करने के लिए हम टर्म यूज करते हैं लिनियर चार्ज डेंसिटी. लिनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है? चार्ज पर यूनिट लेंथ. इसकी यूनिट लेंथ में कितना चार्ज होगा उसको हम कहेंगे लिनियर चार्ज डेंसिटी. लैम्डा से डिनोट करेंगे. सो इट इज चार्ज पर यूनिट लेंथ. नाउ सपोज जो ये हमारी वायर है इस पे टोटल चार्ज Q है एंड इसका लेंथ है जो L है, तो फिर लैम्डा क्या आ गया हमारे पास? Q बाई L. क्लियर? अच्छा एक और देखिए. अब अगर इसमें इसका कोई स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लिया, दिस इज स्मॉल एलिमेंट whose length is, let us suppose, dl, and here charge will also be small, and the charge here is, let us suppose, dq. Then I can also define lambda as dq by dl. dq is the charge on this small element and dl is the length of this element, so lambda will be dq by dl. Clear? अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं. चार्ज का यूनिट है कूलम और लेंथ का यूनिट है मीटर. Coulomb by meter, so it becomes coulomb per meter. So this is linear charge density. Clear? Now let us talk about surface charge distribution. When charge is distributed over the surface area of an object, किसी के भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हो. एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास एक मेटालिक शीट है और इस शीट पे यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. जहां आपके पास सपोज करो कोई मेटालिक सफियर है, होलो है, चाहे सॉलिड मेटालिक सफियर है, जो मेटल पे आप कोई भी चार्ज सप्लाई करते हो, डिस्ट्रीब्यूट करते हो, वो चार्ज है जो वो उसके आउटर सरफेस पे रिजाइड करता है. सारे का सारा चार्ज आउटर सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. सो इट इज आल्सो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. यहां पे हम टर्म यूज करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी. सिग्मा से इसको डिनोट करोगे. सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया. मान लो इस पूरी शीट पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है Q और इसका एरिया है A, सो सिग्मा विल बी Q अपॉन A.
ओके, और हम क्या ले सकते हैं, सपोज इस पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका एरिया है dA एंड इस पे कोई स्मॉल चार्ज है dQ, देन सिग्मा विल बी dQ बाय dA। अगर इसके यूनिट्स की बात करें तो कूलम, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का मीटर स्क्वायर, सो इट विल बी कूलम पर मीटर स्क्वायर। सो दिस इज सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे उसके वॉल्यूम में जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, देन वी कॉल इट वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ इसका एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास सपोज करो एक सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर है, सॉलिड इंसुलेटिंग स्फीयर, अगर हम उसको कोई चार्ज सप्लाई करेंगे तो जो वो चार्ज है वो उसके पूरे के पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सो इट इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और आप ले सकते हो कि इंसुलेटिंग क्यूब है हमारे पास, उसमें हमने कोई चार्ज सप्लाई किया तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड लाइक दिस थ्रू आउट द वॉल्यूम, सो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको डिफाइन करने के लिए हम जो टर्म यूज करते हैं दैट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको हम रो से डिनोट करेंगे। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है वो इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, सो इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर। अब सपोज करो जो क्यूब है इसका टोटल वॉल्यूम है जो v है, लेट अस मैंने सपोज कर लिया, और इस पे जो टोटल चार्ज है दैट इज q, सो रो विल बी q अपॉन b। क्लियर। और अगर मैं इसका कोई स्मॉल एलिमेंट ले लूं, सपोज करो स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट, उस पे कोई स्मॉल चार्ज होगा dq और उसका कोई स्मॉल वॉल्यूम होगा dv, then from here I can define charge density is dq by dv। क्लियर। अब हम इसके यूनिट्स की बात करते हैं, तो चार्ज का यूनिट है कूलम और वॉल्यूम का यूनिट है मीटर क्यूब, सो इट्स यूनिट विल बी कूलम पर मीटर क्यूब। ओके, जो रो है इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब। क्लियर। तो दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो गाइस नाउ वी विल फाइंड आउट द फोर्स एक्सर्टेड बाय linear charge distribution on another charge q0. Suppose we have this a wire, and on this wire a charge, positive charge is uniformly distributed, so this is linear charge distribution. L is the length of this wire and q is the total charge which is distributed on this wire. So charge density of this wire we will denote it by lambda, linear charge density, so it will be q upon l, charge upon length। ठीक है, क्लियर। अब हम जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसका फोर्स फाइंड आउट करना है इस चार्ज q0 पे। अब भैया ये कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि हमें तो कूलम लॉ अप्लाई करना है और कूलम लॉ किस पे अप्लाई होता है, पॉइंट चार्ज पे अप्लाई होता है। तो आप सोचोगे अब हाउ टू डू दिस, तो हम क्या करेंगे, हम इस पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर करेंगे। कंसिडर स्मॉल एलिमेंट जिसका लेंथ कितना होगा dl, वेरी स्मॉल लेंथ dl, एंड इट हैज अ वेरी स्मॉल चार्ज हियर दैट इज dq। तो फर्स्टली हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट ऑन दिस चार्ज q0। तो इसको हम देखते हैं डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज, distance between two charges. So basically now we have two charges, one is this elemental charge and second is this charge q0। clear, and this is the gap between them। okay, अच्छा एक बात और, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं, dq by dl भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। now the force exerted by this element on this charge q0, it will be a small force, so I am writing it df, it will be 1 by 4 by epsilon naught, first charge dq, सेकेंड चार्ज q0 डिवाइडेड बाय, देखो हमें क्या करना होता है, हमने पहले ये पढ़ लिया, फाइनल का जो पोजीशन वेक्टर है माइनस इनिशियल का पोजीशन वेक्टर लेना होता है। तो r0 वेक्टर माइनस r वेक्टर मोड क्यूब आएगा जहां पे, और इनटू r0 वेक्टर माइनस r वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स बाय दिस स्मॉल एलिमेंट। यहां पे dq का वैल्यू अगर हम देखें यहां से निकल आएगा, dq विल बी लैम्डा इंटू dl, ये हमारा dq का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा इंटू dl। ये वैल्यू आपने क्या कर देना है, यहां पे पुट कर देना है, तो आपके पास df का एक्सप्रेशन क्या बनेगा, इट विल बी 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl
क्यू नॉट एज इट इज आ जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर मॉड क्यू। क्लियर? दिस इज द स्मॉल फोर्स। अगर हमने अब टोटल फोर्स फाइंड आउट करना है, टोटल फोर्स जो ये हमने फाइंड आउट किया है, ये तो भाई सिर्फ ओनली दिस एलिमेंट का फोर्स है इस पे। अब देखो इस पूरी जो लेंथ है, पूरी वायर है, इसमें ऐसे कितने ही स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स होंगे, हर एक एलिमेंट इस पे फोर्स लगाएगा। तो टोटल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें ऐड अप करना होगा सारे एलिमेंट्स की फोर्स को। जितने भी एलिमेंट्स फोर्स लगा रहे हैं उनको सबको क्या करना पड़ेगा, सम अप करना पड़ेगा। तो सम अप हम कैसे करेंगे, हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। जो स्मॉल फोर्स है एक एलिमेंट की, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द कंप्लीट लेंथ। तो हमारे पास निकल के आएगा आंसर, टोटल एक्सप्रेशन आएगा। तो हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl, it is q naught r naught vector minus r vector divided by r naught vector minus r vector mod q। क्लियर? ओवर द होल लेंथ l हमने इंटीग्रेशन करना है। अब इसमें से एक स्टेप और देखते हैं हम। इसमें देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, आउटसाइड चला जाएगा। लैम्डा इज आल्सो कांस्टेंट, q नॉट इज आल्सो कांस्टेंट। तो जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको हम इंटीग्रल से आउटसाइड ले जाएंगे। सो इनसाइड द इंटीग्रल हमारे पास क्या रह गया, दिस इज आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर मॉड क्यूब इनटू डीएल। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द कंप्लीट लेंथ ऑफ द वायर एल। तो ये हमारे पास निकल के आएगा एक्सप्रेशन फॉर द टोटल फोर्स exerted by this linear charge distribution on this charge q naught. Get it? Now we will find out force exerted by force surface charge distribution at some charge q naught. Clear? तो ये हमारे पास एक मेटालिक शीट है, इस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। The area of the sheet is A and total charge distributed is Q. So its surface charge density sigma will be Q upon A. Now to find out the force exerted by this on this Q naught, we have to consider a small element of charge on this sheet. So I am considering a small surface area of this sheet. Suppose charge here is very small dq and area of this part, this surface is very small dA. Its position vector of this element is r vector and q naught का जो position vector है वो r naught vector है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, we will find out the force due to this small element at q naught. Clear? So dF is 1/4 pi epsilon naught dq, first charge, second charge q naught upon final minus initial r naught vector minus r vector mod cube into r naught vector minus r vector। ये क्लियर हो गया? दिस इज द स्मॉल फोर्स exerted by this small elemental charge। ओके, यहाँ पे dq की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे सिग्मा इंटू डी, तो इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, बाकी सब सेम है। क्लियर? नाउ टू फाइंड आउट द टोटल फोर्स we have to do integration। तो df का इंटीग्रेशन कर देंगे, टोटल फोर्स आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ df। सो इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे। क्लियर? अब इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है। सो इनसाइड द इंटीग्रेशन हमारे पास क्या रह जाएगा, r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर इनटू dA डिवाइडेड बाय r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर मॉड क्यूब। तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ओवर द होल एरिया A। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, force exerted by this surface charge distribution on any another charge q naught। Clear? Now we are going to find out the force exerted by volume charge distribution on another charge। So guys, I have this cube of some insulating material, solid cube। इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इट इज कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इसका फोर्स फाइंड आउट करना है जो ये एक्सर्ट करेगा इस चार्ज क्यू नॉट पे।
अब इसके लिए हमें कूलम्स लॉ अप्लाई करना पड़ेगा, और कूलम्स लॉ अप्लाई करने के लिए हमें कोई ना कोई इसमें स्मॉल पॉइंट चार्ज, एलिमेंट चार्ज कंसिडर करना पड़ेगा. तो आई एम कंसिडरिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस डिस्ट्रीब्यूशन, दिस स्मॉल एलिमेंट हैविंग चार्ज dq and having volume dv. Clear? Now suppose the total charge is cube पे, that is q, and the volume of the cube is b, then volume charge distribution rho is given by q upon b, और जहां हम कह सकते हैं इसको dq by dd. क्लियर? अब इस स्मॉल एलिमेंट का फोर्स देखते हैं, इस पे क्या होगा, स्मॉल फोर्स ही होगा, तो उसको नाम देते हैं df, दैट इज 1/4 pi epsilon naught, दिस चार्ज dq, दैट चार्ज q नॉट, फाइनल माइनस इनिशियल करना होता है हमने, तो r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर मॉड क्यूब इंटू r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर. क्लियर? नाउ dq की जो वैल्यू है यहां से निकाल लेंगे हम, क्या आ गई, रो dv, पुट हियर रो dv इंटू क्यू नॉट, रेस्ट सब कुछ ऐसे ही आ जाएगा. नाउ दिस इज अ स्मॉल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस स्मॉल एलिमेंट. भाई हमने तो कैलकुलेट करना है टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस होल वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमें ऐसे कितने ही एलिमेंट्स का क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा. और हम सम कैसे करेंगे, हम क्या लेंगे, इंटीग्रेशन. तो टोटल फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ df ओवर द होल वॉल्यूम. क्लियर? तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम. अब इसमें देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट है, क्यू नॉट कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट फैक्टर्स बाहर आ जाएंगे. इनसाइड क्या रह जाएगा, वन इज r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर इंटू dv डिवाइडेड बाय r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर मोड q. तो ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्सर्टेड बाय होल वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अनदर चार्ज q नॉट. क्लियर? थैंक यू.